আগরতলা এমবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় ভূমিকম্প হলে কি করে তা রোধ করা যেতে পারে বা তার কি করে তার মোকাবিলা করা যেতে পারে সেই মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় ভূমিকম্প মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। ভূমিকম্প হলে আগরতলা বিমানবন্দরে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে সেই প্রস্তুতি দেখতেই মহড়ার আয়োজন করা হয়। জনগণকেও এই বিষয়ে সচেতন করার মহড়ার উদ্দেশ্য। এনডিআরএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ, পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির 200 জন এই মহড়ায় অংশ নেন। এনডিআরএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ, পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির মোট 200 জন এই মহড়ায় অংশ নেন। আগরতলা বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই ভূমিকম্প মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠানটি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কেসি মিনা। আমাদের রাজ্য ভূকম্পন প্রবণ এলাকার সিসমিক জোন 5-এ অবস্থান করছেন। আমাদের রাজ্য ভূকম্পন প্রবণ এলাকায় সিসমিক জোনে 5-এ অবস্থান করছে। ভূমিকম্প হলে আগরতলা বিমানবন্দর কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে এই বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই সাথে জনগণকেও সচেতন করার লক্ষ্য এই মহড়া অনুষ্ঠানটি। আগরতলা এমবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবনে হয় অনুষ্ঠানটি। ভূমিকম্প মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। আগরতলা এমবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, এমবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কেসি মিনা। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই ভূমিকম্প মোকাবিলার মহড়া অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কেসি মিনা। আমাদের রাজ্য ভূকম্পন প্রবণ এলাকার সিসমিক জোন 5-এ অবস্থান করছে। ভূমিকম্প এলে ইনস্ট্যান্ট কি করে এর মোকাবিলা করা যেতে পারে সেই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্য ছিল এই মহড়ার অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। সেই সাথে বিমানবন্দরে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে সেই প্রস্তুতি দেখতেও মহড়ার আয়োজন করা হয়। এনডিআরএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ, পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির 200 জন এই মহড়ায় অংশ নেন। রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে কি বলছেন শুনবো। एयरपोर्ट से रिलेटेड थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट में अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद कोई डिजास्टर होता है तो उसके लिए हम कैसे रिस्पांस करें। तो उसके लिए ये बेसिकली पैसेंजर को कैसे सेव करें या कोई प्रॉपर्टी उसको कैसे सेव करें और कैसे हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट उसके बाद कैसे हमें इसको हैंडल करना चाहिए। तो इसमें सारी एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया। CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NDMA के रिप्रेजेंटेटिव, आप जान ही रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मिस्टर वर्मा हैं यहाँ पर। साथ में हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, फायर सर्विस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपदा मित्र हैं, जितनी भी एजेंसीज मतलब जो भी डिजास्टर में ज़रूरत होती है वो सारी एजेंसीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और बेस्ट पार्ट इस जो एक्सरसाइज का था तो इसमें ये जो हमने सिमुलेशन किया कि जैसे पैसेंजर मान लीजिए जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें पैसेंजर स्ट्रैंडेड तो कैसे हम उसे इवैक्यूएट करें, एरिया को कैसे कॉर्डन ऑफ किया जाए, उसके बाद कैसे हम रिस्पांस करें। तो इसके हमने बहुत सारे स्टेप्स कर रखे थे कि जब ये होता है तो सायरन बजता है, उसके बाद फर्स्ट रिस्पांस आता है कि पता चलता है कि डिजास्टर हो गया है।
यानी अर्थक्वेक आया है और हमें रिस्पांस करना शुरू करना है। इसमें डायरेक्टर जो एयरपोर्ट है उनका एक रोल है, साथ में हमारा जो इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम है उसके कमांड एंड कंट्रोल का काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा था। तो कैसे एक एक एजेंसी आएगी और उनके साथ आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके हम पैसेंजर को कैसे सेव करेंगे, तो ये पूरी एक्सरसाइज की गई है। और बहुत सारी लर्निंग थी क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए और जब क्राइसिस आए तो बिना पैनिक हुए कैसे हम रिस्पांस करें, ये सब हम लोग सिमुलेट किए और इसी काम में वो किया। कुछ हमें मतलब मोस्टली तो अच्छा कोऑर्डिनेशन था और मतलब एक्सरसाइज करीब हमारी जो 2 घंटे चली वो तो आप देख ही रहे थे, कवर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा चला। बट हमने कुछ ऑल्सो मतलब कुछ और पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ हम और इम्प्रूव करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। एंड हम लोग बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, साथ में वर्मा साहब को एंड हमारे मीना साहब को, कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया और हम सब ने पार्टिसिपेट किया। और साथ में आप देख ही रहे हैं डीएम कलेक्टर भी हैं यहाँ पर, एसपी साहब भी थोड़ी देर पहले आए हुए थे, तो यही था। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि देखिए किसी भी डिज़ास्टर का बेस्ट रिस्पांस जो होता है जहाँ पर एजेंसी के साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভূকম্পন প্রবণ এলাকার সিসমিক জোন 5 এ অবস্থান করছে এবং ভূমিকম্প হলে আগরতলা বিমানবন্দরে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে, তৎক্ষণাৎ কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে সেই প্রস্তুতি দেখতেই সেই বিষয়ে মহড়ার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, আমরা এতক্ষণ শুনলাম ব্রিজেশ পান্ডের বক্তব্য। সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কেসি মিনা, এনডিআরএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ, পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির 200 জন এই মহড়ায় অংশ নেন। জনগণকেও এই বিষয়ে সচেতন করা হয়। এই মহড়ার উদ্দেশ্য জনগণকেও সচেতন করা, কিভাবে ভূমিকম্প এলে কিভাবে এর মোকাবিলা করা যেতে পারে। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় এই ভূমিকম্প মোকাবিলার মহড়ার অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন ব্রিজেশ পান্ডে, রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এবং পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, এমবিবি বিমানবন্দরের অধিকর্তা কেসি মিনা সহ আরো অন্যান্য আধিকারিকেরা। আমাদের রাজ্য ভূকম্পন প্রবণ এলাকার সিসমিক জোন 5 এ অবস্থান করছে। ভূমিকম্প মোকাবিলায় বিমানবন্দরে এই মহড়া অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমবিবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনডিআরএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ, পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির 200 জন এই মহড়ায় অংশ নেন। আমরা আবারও একবার শুনবো রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে কি বলছেন। एयरपोर्ट से रिलेटेड थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट में अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद कोई डिजास्टर होता है, तो उसके लिए हम कैसे रिस्पांस करें। तो उसके लिए ये बेसिकली पैसेंजर को कैसे सेव करें या कोई प्रॉपर्टी उसको कैसे सेव करें और कैसे हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट उसके बाद कैसे हमें इसको हैंडल करना चाहिए। तो इसमें सारी एजेंसीज़ ने पार्टिसिपेट किया, CISF, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NDMA के रिप्रेजेंटेटिव, आप जान ही रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड मिस्टर वर्मा हैं यहाँ पर, साथ में हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, फायर सर्विस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपदा मित्र हैं, तो जितनी भी एजेंसीज मतलब जो भी डिजास्टर में ज़रूरत होती है वो सारी एजेंसीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और बेस्ट पार्ट इस जो एक्सरसाइज का था, तो इसमें ये जो हमने सिमुलेशन किया कि जैसे पैसेंजर मान लीजिए जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें पैसेंजर स्ट्रैंडेड, तो कैसे हम उसे इवैक्यूएट करें, एरिया को कैसे कॉर्डन ऑफ किया जाए, उसके बाद कैसे हम रिस्पांस करें। तो इसके हमने बहुत सारे स्टेप्स कर रखे थे कि जब ये होता है तो सायरन बजता है, उसके बाद फर्स्ट रिस्पांस आता है कि पता चलता है कि डिजास्टर हो गया है, यानी अर्थक्वेक आया है और हमें रिस्पांस करना शुरू करना है। इसमें डायरेक्टर जो एयरपोर्ट है उनका एक रोल है, साथ में हमारा जो इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम है उसके कमांड एंड कंट्रोल का काम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ले रखा था। तो कैसे एक एक एजेंसी आएगी और उनके साथ आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करके हम पैसेंजर को कैसे सेव करेंगे, तो ये पूरी एक्सरसाइज की गई है। और बहुत सारी लर्निंग थी क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाए और जब क्राइसिस आए तो बिना पैनिक हुए कैसे हम रिस्पांस करें, ये सब हम लोग सिमुलेट किए और इसी काम में वो किया। कुछ हमें मतलब मोस्टली तो अच्छा कोऑर्डिनेशन था
और मतलब एक्सरसाइज करीब हमारी जो 2 घंटे चली वो तो आप देख ही रहे थे, कवर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा चला। बट हमने कुछ ऑल्सो मतलब कुछ और पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं कि कहाँ हम और इम्प्रूव करते हैं, और इसी को ध्यान रखते हुए हम फिर दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। एंड हम लोग बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, साथ में वर्मा साहब को एंड हमारे मीना साहब को, कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया और हम सब ने पार्टिसिपेट किया। और साथ में आप देख ही रहे हैं डीएम एंड कलेक्टर भी हैं यहाँ पर, एसपी साहब भी थोड़ी देर पहले आए हुए थे। तो यही था, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि देखिए किसी भी डिज़ास्टर का बेस्ट रिस्पांस जो होता है जहाँ पर एजेंसी के साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। আগরতলা এমবি বিমানবন্দরের পুরাতন ভবন এলাকায় ভূমিকম্প মোকাবিলায় মহড়া অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। এনডিআরএফ, টিএসআর, সিআরপিএফ, পুলিশ সহ বিভিন্ন এজেন্সির 200 জন এই মহড়ায় অংশ নেন। মূলত জনগণকে এই বিষয়ে সচেতন করা এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য। তৎক্ষণাৎ এরকম পরিস্থিতির শিকার হলে উত্তেজিত না হয়ে কি করে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায় এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করাও এই মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল। সেই সাথে বিমানবন্দরে কিভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হবে সেই প্রস্তুতি দেখতেই মহড়ার আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার।